जी डॉक्टर हेलो सना मैडम, अब आवाज बताइए। मैडम अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। Madam, there was a scenario. A patient 29 years of age presented with heavy bleeding in the labor room. She has history of miscarriage 20 days ago. How will you proceed? मिसकैरेज, हाउ 20 मेनी days डेज ago. अगो? 20 days. 20 डेज। ठीक है, चलें शुरू करें। How will इसमें you? कैसे आप प्रोसीड करेंगी? Uh, Assalamu alaikum. I am Dr. Sana, one of the exam candidate. I have read through the instructions and ready for the second discussion. I have been हम्म। given a task in which there is a patient who is 29 years of age. She presented with heavy bleeding in the labor room, and she also has a history of miscarriage 20 days ago. हम्म। First of all, as the patient is heavily bleeding, it is a obstetrical emergency, so I will immediately call for help and will initially resuscitate my patient. I will check the status of her bleeding, and I will maintain the ABC, including I will give her 100% oxygen, and will maintain ask the staff to maintain the two wide for IV lines. And take the samples for the immediately sending the labs, including in her blood group and arrangement of the blood and the blood products. Will send the full blood count and her renal function test and the clotting studies of the patient. And then I will rush the fluids to my patient for the resuscitation. Meanwhile, I will take a short brief history of my patient. What has happened 20 days ago, as she has a history of miscarriage. I will take the brief introduction of the patient, including the parity, her last mode of delivery and last child born, and what about the previous miscarriage, whether it was a miscarriage at home, and history of the intervention at that time, including the DNC. And see what happened in these 20 days, whether patient was bleeding in these 20 days, as there was a heavy episodes of the bleeding, and to rule out any RPOs, and will ask any history of found swelling vaginal discharge up till now to rule out any endometritis. Then हम्म। I will also take the brief. Meanwhile, I will ask one of my assistants to arrange the bedside arrangement of her ultrasonography if the patient is still bleeding. Then I will also take the brief history regarding her obstetrical बेटा history यू आर and टू फास्ट, थोड़ा सा इसको स्लो डाउन करें। आपकी आवाज की पिच भी बीच में अप एंड डाउन हो रही है, ठीक है, जिससे थोड़ी सी क्लेरिटी ऑफ वॉइस आपकी इतनी नहीं है। तो वो जरा थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। और okay, थोड़ा सा इसको जरा स्लो डाउन करें, ताकि आपकी जो okay. इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हो वो सब लोग रजिस्टर कर सकें। Okay, madam. जी Then the जी। obstetrical history regarding any antenatal, intrapartum, or the postpartum complication, any history of the anemia previously, and हम्म। are the bleeding disorder in my patient, any bleeding episodes previously, bleeding from any other sites of the body. हम्म। Then her brief gynecological history regarding any contraception. She had pap smear or not, or to rule out any local cause. Then and I will take her medical history for any other comorbidity like hypertension, diabetes, mellitus, or any other bleeding disorder in her or her family. Then हम्म। her personal history of smoking or any other addiction and social support at home. Then I will do the examination of the patient. Initially in the resuscitation, I have taken the vitals of the patient. If the vitals are available, madam. हम्म। ओके। Then मतलब इसमें आपने अब वाइटल्स तक तो आप आ गए, और ये सारा एग्जामिनेशन वगैरह जो आपने बिल्कुल फर्स्ट स्टैंड में करना होता है, बिकॉज द पेशेंट हैज कम विद हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग एंड वी डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअली द स्टेटस एंड सिंस व्हेन शी इज ब्लीडिंग हैवीली। ठीक है, yes, उसमें जो आपने हिस्ट्री में जो मुझे बताया, जो मैंने रजिस्टर किया है, बिकॉज यू वर वेरी फास्ट और वो थोड़ा सा आपकी आवाज भी ऊपर नीचे हो रही थी, कि इसमें आप पूरा हिस्ट्री ऑफ स्टैटिक हिस्ट्री को एवेलुएट करेंगे एंड व्हाट वाज द इवेंट 20 डेज बैक एक्चुअली, कि इसमें yes, इसकी अबॉर्शन हुई, मिसकैरेज, वाज इट स्पॉन्टेनियस और वाज इट फॉलोड बाय evacuation and curettage, and what was the amount of bleeding thereafter, yes, उसके बाद, और ये सारा कुछ, और उसमें क्या मेडिसिन वो लेती रही, कितनी जेस्टेशन पीरियड था उसका, व्हाट अबाउट द अदर ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, ये सब चीजें आपने ये पूछनी है। और उसके अलावा कोई कोमॉर्बिडिटीज इसमें क्या हैं, या उसके कोई प्रीसीडिंग इवेंट्स क्या हैं, वो सब आपने पूछने हैं। एंड नाउ यू हैव कम टू जंप बेसिकली टू द एग्जामिनेशन,
कि जिसमें आप अभी वाइटल साइंस पूछ रहे हो, विच वाज द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जब आपने इसकी रिससिटेशन स्टार्ट की, तो वाइटल्स तो अभी पूछने हैं। लेकिन ये है कि अब जो आप एग्जामिनेशन करोगे, एग्जामिनेशन पे आपने फोकस करना है ज्यादा। तो एग्जामिनेशन पे आप अपार्ट फ्रॉम वाइटल साइन जो आपने इनिशियली कर दिए, व्हाट अदर एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स यू विल लाइक टू नो इन दिस पर्टिकुलर Madam, पेज? I would like to know the per abdominal findings regarding any tenderness and any mass spasms in the pelvic region. और And I would any other basically, and then I will also I would like to see the general look of the patient for any other bleeding fatigue or any other signs of the clotting abnormalities. And we'll do the local examination, including the vaginal examination to see any clots in the vagina is present. Then I will remove them, and we'll do the general examination of the to see the cervix whether it is open or not, and to assess the size of the uterine cavity and any tenderness and any adnexal pathology. हम्म, Uh, ठीक है। और Madam, is this findings are available? जी जी, Are these findings are available, madam? अच्छा, अब आप चाहते हो कि मैं आपको फाइंडिंग्स दूं? मैडम, एक्चुअली ये इससे जो इससे जी, एग्जाम में स्टेरियो हुआ था ना, वो इसी तरह से था। उन्होंने कहा जी आपको क्या चाहिए, व्हाइट बेटा टेस्ट आप थोड़ा चाहिए सा या ना, हाइड्रोजन? मुझे शायद मुझे ही मसला हो रहा है, आपकी थोड़ी सी आवाज बहुत क्लियर बीच में नहीं आती। तो वो जरा थोड़ा सा देखें कि जो आप बोल रहे हैं वो थोड़ा सा इसको, एक तो थोड़ा सा स्पीड अपनी कम करें और थोड़ा सा अपनी पिच को कांस्टेंट रखें ताकि हमें जरा समझ आ जाए, क्योंकि बहुत क्लियर नहीं है। तो बीच में हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन दी हुई हम कुछ मिस कर दें। अच्छा, एग्जाम सिनेरियो क्या था एक्चुअली? बिकॉज इस मैडम, स्टेज पे आके जब आपका स्ट्रक्चर्ड वाइवा चल रहा होता है, तो जो एग्जामिनर होता है अगर उसने इंफॉर्मेशन सारी आपको देनी है, तो वो आपको बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन देगा जिससे उस टॉपिक की तरफ आप चले जाओगे नेचुरली। देन यू हैव टू बेसिकली टू सॉर्ट आउट कि ये जो फाइंडिंग्स मुझे एग्जामिनर ने दी हैं ये क्या डायग्नोसिस की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये आपने, आपका एग्जाम सिनेरियो क्या था? मैडम एग्जाम स्टेरियो में ना, जब अब मैडम मेरी वॉइस क्लियर है? आपकी असल में मसला पता है क्या है? एक तो आपका फास्ट तो है ही है, चले वो तो आप स्लो डाउन कर लेंगी, लेकिन आपकी आवाज कभी ऊंची हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। तो उसकी जो पिच है वो इतनी ज्यादा वेरिएबल है कि उसमें कुछ चीजें समझ आ जाती हैं, कुछ नहीं समझ आती। तो मैडम अब ये ठीक आ थोड़ा रही सा है आप आवाज? अपने एंड पे मैनेज कर लीजिए कि आवाज जो है वो कांस्टेंट, उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रहे विद ठीक मैडम, लिटिल बिट अब कुछ स्कूज। आवाज क्लियर आ रही है? जी अब तो आ रही है। अब ठीक हो अगर ये गया मैडम। रही है क्लियर तो ठीक है, चले जी बताइए। जी। अच्छा मैडम, एग्जाम में इस तरह से था कि यूं पेशेंट आया था, हैवीली ब्लीड कर रहा था। उसके बाद मैडम ने कहा अच्छा ठीक है। जब थोड़ी सी हिस्ट्री लेने के बाद उन्होंने कहा जी हाँ जी क्या चाहिए आपको, एग्जामिनेशन पे वाइटल्स चाहिए। हम्म वाइटल्स जब दिए तो उसमें उसका ब्लड प्रेशर 90/50 था। हम्म फिर इस तरह से उसकी पल्स भी टैकीकार्डिया में थी, उसको रिससिटेट किया। हम्म फिर उसके बाद जब उन्होंने पर एब्डोमिनल फाइंडिंग्स पर विजाइनल, उन्होंने कहा कि ठीक है जी क्लॉट्स नहीं है विजाइना में इतने ज्यादा, आपने रिमूव कर लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स दी। जब हम्म इन्वेस्टिगेशंस दी उसमें बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस में ओके, उन्होंने मुझे इसके सीबी। एग्जामिनेशन से, इन्वेस्टिगेशन से पहले की हद तक इसमें हम्म। सपोज वी से दैट पेशेंट इज वाइटली स्टेबल। स्टेबल मींस कि उसका बीपी भी ठीक है और उसका पल्स रेट भी ठीक है। ठीक ऑन है। विजाइनल एग्जामिनेशन यूट्रस इज स्लाइटली बल्की, या आप कह सकते हैं कि 8 वीक साइज तक, बट ऑस इज क्लोज्ड एंड देयर इज फ्रेश ब्लड कमिंग थ्रू द ऑस on speculum examination. There is no adnexal pathology and you don't notice any mass or tenderness on bimanual digital examination. तो अब इसमें ओके। इन्वेस्टिगेशन आप क्या कराना चाहेंगी? What investigation you want from me to make out a diagnosis? मैडम आई विल नीड द सर्टेन और एक बेसलाइन। दूसरी बात ये कि यहाँ तक जब आप एग्जामिनेशन कर लेते हैं ना, तो उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की टर्न आती है तो एग्जामिनेशन तक आपका डायग्नोसिस कुछ ना कुछ बन चुका होता है। तो उस डायग्नोसिस में से कुछ को आपने कंफर्म करना है और कुछ आपके रूल आउट हो जाती हैं बाय डूइंग सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस। तो व्हाट इज द प्रोविजनल डायग्नोसिस इन दिस पेशेंट? सपोज हम ये कहते हैं कि ये पेशेंट जो है इसकी एवैक्यूएशन हुई
20 days back when she ended up with the incomplete abortion at 9 weeks of gestation. And then she ended up in evacuation and curettage because she was bleeding heavily at that time. And after that, she had mild vaginal bleeding off and on, but now for last 6 hours, she is bleeding heavily. Okay, and she gives history of using almost 6 pads with the passage of clots in the last 6 hours. With this history, how you will, what is your provisional diagnosis and how you will move on for the final confirmation? Madam, based on this history up till now and the findings given to me, the most probably the differential diagnosis in my mind are retained products of the conception. It could be endometritis, although less likely because there is no history of the fever or any other foul-smelling vaginal discharge. The other one rarely, but it could be an AV malformation. Or beside it, it could be a AV gestational malformation तो trophoblastic बहुत disease. रेयर चीज है ना, तो ज्यादा कॉमन वन क्या होगा इसका डिफरेंशियल Madam, it could be gestational trophoblastic disease. Are the less likely, but it could be a local cause. Local cause means what? Local cause including any cervical pathology or any endometrial pathology. But you have examined her, and on examination there was apparently no cervical pathology. Cervix Yes, was normal looking, and there was fresh blood coming through the os, and os was closed. Yes, madam, you're right. Yes, madam, you're right. That's why it is my fourth differential, rather fifth differential. Beside it, it could be an endometrial polyp that is bleeding now. Okay. So these are my Despite having differentials. evacuation and curettage at that time, you still think that endometrial polyp can be one of the causes. Okay, then Yes. what investigation you will go for in this patient? Madam, in this patient, beside the baseline investigation for the confirmation of my diagnosis, I will need the certain specific investigation, including the pelvic transvaginal ultrasonography of my patient, for any endometrial or the uterine pathology and any adnexal pathology. Is it available? Okay. On a transvaginal scan, though patient is bleeding heavily, would you go for transvaginal scan in this patient at the moment? ओके चलो इसको हम ट्रांस एब्डोमिनल भी कर लेते हैं, बस अल्ट्रासाउंड इसका पेल्विक अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं. पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे देयर इज एन हाइपोएकोइक mass of almost 3 into 4 centimeter which is present in the endometrial canal with increased Doppler flow. और इसका आपने क्या मांगा था? Yes, madam. Madam, और beside इसका the क्या मांगा baseline, था आपने? beside it, the baseline investigation, including the blood group and ठीक है, RX बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में हर हीमोग्लोबिन इज 9.5. 9.5. Okay, madam. ठीक है, बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन हम फॉर टू सिंप्लीफाई द केस बाकी सब नॉर्मल है. Okay, madam. Madam, please stop the flow. और क्या Any इसमें angiography और report क्या is available? जी? Madam, any beta HCG is available? बीटा ईसीजी इसका है ऑलमोस्ट 25 कह लें. Okay, madam. Any angiography studies are available? No. No. Okay, madam. Should I, madam, I have done with my investigations. Should I proceed towards the management? जी जी बताइए. अब आपका डायग्नोसिस क्या बना? अब पेशेंट की ये जो मैंने आपको इन्वेस्टिगेशंस दी हैं इसमें इसका डायग्नोसिस क्या बना? आपको एग्जामिनेशन फाइंडिंग मैंने दे दी. अब आपको मैंने जो इन्वेस्टिगेशन जो आपने मांगी वो मैंने वो उसकी रिपोर्ट्स आपको बता दी. तो अब इसमें क्या आपका डायग्नोसिस क्या बना? Madam, based on this, it could be an endometrial polyp. Or it could be AV malformation. और बस मैडम मेरे ज़हन में तो यही 2 यार. बस
हमारे Yes, ऑडियंस madam. में से और कोई अगर पार्टिसिपेट करना चाहे एट दिस पॉइंट कि इसमें हमारा डायग्नोसिस बेस्ड ऑन दीज इन्वेस्टिगेशंस क्या बना, द पॉसिबिलिटीज, because still we are not at a concluded diagnosis, we are still in the possibilities zone. Madam, it could be an cancerous changes in the endometrium. It can be at what? It could be cancerous changes in the endometrium leading Cancer to staging? आपका Yeah. मतलब है कि एंडोमेट्रियल it could be कार्सिनोमा? yes, it could be endometrial carcinoma, polypoidal yeah, carcinoma could be there. अच्छा, और कॉमन चीज इसमें क्या हो सकती है? ज्यादा कॉमन वन, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एट एज 29, वेरी वेरी It's रेयर, very rare. मोर रेयर Madam, देन AVM. actually, I'm not sure whether the RPOCs have the blood flow or not. They usually don't have the blood flow. Are you sure? I'm not sure about it. That's why I'm not Okay. giving it into the So discussion. among the audience कोई और अगर इसमें अपना व्यू पॉइंट बताना चाहे तो इसमें और क्या, इसमें क्या डायग्नोसिस बनेगा इस इन फाइंडिंग्स के बेस पे? जी, और कोई हमारा वॉलंटियर नहीं है? चले, ओके। अब इसमें देखो, डॉपलर फ्लो का होना, ये रूल आउट नहीं करता कि ये आरपीयूसीस नहीं है। सो एंडोमेट्रियल जो हाइपोएकोइक मैस है वो इसमें जो प्रोविजनल जो डायग्नोसिस हमारा बनेगा, इधर या तो ये है आरपीओसीज विद रेज्ड डॉपलर आर क्वाइट पॉसिबल। ऐसा Okay. नहीं है कि उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। बीटा ईसीजी मैंने बहुत मिनिमल इसलिए बताया कि आफ्टर एन एबॉर्शन जो बीटा ईसीजी लेवल्स को नॉर्मलाइज होते होते 3 से 4 हफ्ते गुजर सकते हैं, but जी। it simply rule out the gestational trophoblastic diseases, so that is out. Endometrial carcinoma at this stage is out because of her age and because of the hypoechoic mass. और वो इस तरह से localized इतना कि वो undetected रहा आज तक, ऐसा possible नहीं है, और evacuation इसको initiate नहीं करती। तो इसमें the provisional diagnosis now, एक मिनट, हेलो जी, जरा ठहर के कीजिए बेटा, मैं इस वक्त बिजी हूँ, ठहर के कीजिए। अच्छा, तो इसमें जो हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा दैट विल बी बिटवीन आरपीओसीज एंड रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन एंड एवी मैलफॉर्मेशन। अब नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, क्योंकि अब इसमें इनकी मैनेजमेंट बिल्कुल फर्क है। अगर ये आरपीओसीज हैं, आरपीओसी जरूरी तो नहीं कि फौरी तौर पे कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग हो, ये बाद दफा थोड़ा सा टाइम पीरियड के बाद भी ब्लीड करते हैं, और इसमें जो एवी मेलफॉर्मेशन है वो अक्सर इन चीजों के नतीजे में भी बन रही होती है। तो इन दोनों में हम डिफरेंशिएट अब कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों की अपीयरेंस अल्ट्रासाउंड पे बाद दफा बहुत मिलती जुलती है। Madam, for the confirmation of this, I will need the angiography studies and उससे ज्यादा the सिंपल कोई चीज है? और MRI. एमआरआई या सीटी विद कंट्रास्ट, ठीक है? Okay, madam. उससे CT उससे भी ये लाइन आउट हो जाएगा। उससे एंजियोग्राफी डेफिनेटली इज वन ऑफ द थिंग्स, लेकिन वो ज्यादा इन्वेजिव है, और उसमें एमआरआई या सीटी विद कंट्रास्ट हम अगर करेंगे तो हमें ये चीज बहुत क्लियरली पता चल जाएगी कि ये एवी मेलफॉर्मेशन है या कि जो एंजियोग्राफी है दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टूल, क्योंकि वो उसमें डेफिनेटली आपको वो पूरे का पूरा वेस्कुलर पैटर्न बता देता है जो कि एवी मेलफॉर्मेशन में होता है। अब सपोज ये आ जाता है ऑन सीटी, हमने कंट्रास्ट करवाया तो ये इसमें हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एवी मेलफॉर्मेशंस आ जाती है। ठीक हो गया मैडम। पेशेंट को काउंसल क्या करोगे? वो कहेगी पहले तो कभी ये चीज नहीं थी, अब क्या होगी, तो अब क्या मसला हुआ?
Madam, I will empathetically counsel my patient regarding the diagnosis that based on the history, examination, and investigation findings, she is having the AV malformation. I will tell her that these are the certain changes in the endometrial lining and vascular pattern of the endometrial lining, and that leads to these changes. It could be acquired and congenital. Yes, she is right that this does not happen previously because it could be acquired in this scenario, or you because and the reason for the acquired could be multiple, including the parity of the patient, including her previous history of DNCs related to any pregnancy event, and so I will discuss with her for She this I will denies involve. she denies any history of irregular vaginal bleeding or heavy vaginal bleeding before this conception. Yes, उसके yes पास madam, कभी you're ऐसा right. कुछ मसला उसका नहीं हुआ पहले कि अब ही इसको हुआ पहली दफा. So And now it she is much worried about it. Why it this could is be happening acquired. so? It could be acquired, most probably due to the evacuation of retained products of conception in the last miscarriage. I will counsel her that it will need. It's a disease that can be that can be treated. So I will discuss with her regarding the further fertility wishes of my patient for the management. As she is young, 29 years of age, I will discuss with her Suppose she is para 2+1 and now para 2+2, यानी 2 abortions अब इसकी होगी, एक उसकी पहले थी और 2 SVDs हैं और अब उसकी ये second abortion है. Okay. ये उसका Madam, obstetric जो history है वो ये है. And previous are the normal vaginal deliveries? Normal deliveries. Okay, madam, I will discuss with her regarding the further fertility wishes, whether she desired for further babies. So, as she desired for further babies and her family is not complete, so I will discuss with her the different management options. For this, I will involve the multidisciplinary team involving the consultant radiologist and the interventional obstetricians, including interventional radiologist, including and also the consultant obstetrician. She is very young, so I will discuss with her regarding the medical management. And although less effective, but the hormonal therapy is there. The other management in the fertility sparing and intervention is the uterine artery embolization. For this, I will involve the interventional radiologist and will discuss with her regarding the pros and cons of uterine artery embolization. I will discuss with her regarding the certain complications of the uterine artery embolization, but the benefit is that it will be the fertility sparing surgery. Although rarely there could be. But uterine artery embolization itself has some questionable issues from fertility point of view. Yes, madam, you're right. It has certain issues regarding fertility problems. So that's why I will discuss with my patient regarding the medical management versus uterine artery embolization. I will outweigh the benefit and the risks of the medical management as well. You are the better person to decide. Just tell me that how to manage her. ठीक है, इस वक्त वो पेशेंट जो आई है अगरचे क्लिनिकली स्टेबल है, बट शी हैज एन एपिसोड ऑफ हेवी वेजाइनल ब्लीडिंग फॉर द लास्ट 6 आवर्स. और आपको जो आपने जो सारे टेस्ट वगैरह करवाए उस पे ये आ गया. अब जाहिर है पेशेंट आते ही फॉरन MRI CT होना जरा, इट टेक्स टाइम. बाय द टाइम हाउ यू विल ट्रीट हर? यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी एक बाद में. हाँ जी. Hormonal therapy, including the combined oral contraceptive pills. Hormonal therapy तो it will take some time to act. तो immediately आप क्या कर सकती हैं? Madam, immediately I will give her the NSAIDs and the trazamine for control of her bleeding. And then I will put what my else patient can be given to her? What else can be given to her? Apart from giving transamic acid and mefenamic acid, और क्या आप कर सकती हैं? इसमें और क्या किस चीज की है? I will put her on the combined oral contraceptive pills. बेटा उसको तो टाइम लगेगा ना. कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फौरी तौर पे तो नहीं पेशेंट की ब्लीडिंग को अरेस्ट करेंगे. और दूसरी चीज ये है कि इसमें जस्ट लाइक ऑक्सीटोसिक एजेंट्स जो हम देते हैं, ठीक है, वो भी हम दे सकते हैं, अर्गोमेट्रिन भी दे सकते हैं, सिंटोमेट्रिन भी दे सकते हैं. ये सारी चीजें, क्योंकि इसका काम क्या होगा,
देखो इन चीजों को देने का मकसद एक्चुअली इट डजंट ट्रीट द एवी malformation itself, but it reduces the blood flow going to that AV malformation का जो बना हुआ है, एक लीजन जो बनी हुई है, उसको जाने वाला ब्लड सप्लाई, उसके फ्लो को, वेलोसिटी को कम कर देगा by initiating the myometrial contraction. ठीक है, ये इवन हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में भी हम ये जैसे साइटोटेक वगैरह यूज कर सकते हैं, इवन एट द टाइम ऑफ मायोमेक्टमी भी हम इसका रोल आता है. तो सिमिलरली इन दिस पेशेंट एट द मोमेंट हम इसको दे सकते हैं, ट्रांसएमिक दे सकते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म, और इसके अलावा हम इसको ये ऑक्सीटोसिक एजेंट्स दे सकते हैं. And we can put her onto the OCPs. How OCPs and hormonal preparations do reduce the ये AV malformation को कैसे वो treat करेंगे? What is its mechanism of action? या हम जैसे GnRH analogs देते हैं, हम danazol भी दे सकते हैं. There are so many options. वो patient to patient फिर फर्क होती हैं. तो how it will reduce? जी. Oral contraceptive pills are given continuously to regenerate the endometrium above these AV malformations. So it will create a barrier. और क्या? It will create a barrier, and that leads to the endometrial formation, and the bleeding stops. और इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? और क्या होता है कि जब हम इसको हार्मोनल पिल्स पे देते हैं या GnRH एनालॉग्स देते हैं या डानाजोल देते हैं, तो इन सब से जो यूट्राइन ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है. रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो इज इंक्रीज्ड. ठीक है, यही वजह है. अब देखो प्री मेंस्ट्रुअल फेज में हमेशा जो यूट्राइन ब्लड फ्लो है इंक्रीज करते हैं, बट व्हेन द पेशेंट इज ऑन these hormonal pills combined हैं या प्रोजेस्ट्रोजन ओनली हैं या GnRH एनालॉग्स है या डानाजोल है, वो ये सारे ब्लड फ्लो को, यूट्राइन ब्लड फ्लो को कम कर देगा. यही वजह है कि जब हम मायोमेक्टमी से पहले GnRH एनालॉग्स से भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, तो उसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड, उसमें उसका ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है. आप में से जो लोग जिन्होंने ऑब्जर्व किया हो या किया हो कभी कि GnRH एनालॉग्स देने के बाद वाली जो मायोमेक्टमी है वो ज्यादा बेहतर तरीके से, आप थोड़ा सा ब्लडलेस तरीके से कर सकते हैं. तो इनका एक फंक्शन ये भी होता है इन एडिशन टू द अदर एंडोमेट्रियल रीजनरेटिंग फैक्टर्स. ठीक है, क्योंकि ये एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं. जो ओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं उसमें पूरे का पूरा वो एंडोमेट्रियल ब्लड फ्लो, ये सब चीजें नॉर्मल तरीके से चल रही होती. But when it is given continuously, because when it is you stop taking it, उसको पेशेंट को जब आप देना बंद कर देते हैं तो ये इफेक्ट नलीफाई हो जाता है. GnRH एनालॉग्स का चूंकि मैकेनिज्म ऑफ उसका इफेक्ट जो है वो दैट लास्ट फॉर 1 month, तो इसलिए उसका इफेक्ट परसिस्ट करता है. लेकिन OCPs जो जिनका इफेक्ट सिर्फ 24 घंटे ही रहता है, वो जब पिल फ्री टाइम पीरियड होता है तो उसका वो इफेक्ट खत्म हो जाता है. So this is the regime which we can use for the time being, because uterine artery embolization does have its own effect. Now, suppose you have given all these therapies and you have started with the OCPs after discussion with the patient, and she want to try the medicine first because she is a little bit afraid of uterine artery embolization because she has heard about the side effects of it and she wants to have more babies. So she knows that sometimes there is ovarian failure with these things. Now, for how long you will give this therapy, and when you will decide that now there is need to move on to the other management, and what can be that other management apart from uterine artery embolization? Madam, I will put my patient on these pills for 3 months. And will ask my patient to immediately come to the hospital in case of breakthrough bleeding. What will be the follow-up in between? इस interim period में उसका follow-up क्या होगा? Madam, I will ask the patient on the 2 weekly basis, and at the first visit I will ask know what? आप follow-up visit पे उसका करेंगी क्या? At the follow-up visit, I will ask the patient regarding the symptoms, regarding her bleeding.
Is there any episode of bleeding, any breakthrough bleeding, any heavy episode she had, and how it is affecting her quality of life? And I will check the compliance of the disease drugs. Then, if the everything is stable, then I will call my patient after the 3 months, provided her condition अच्छा remains फिर satisfactory. ठीक है, 3 months के बाद आ गई, उसने कहा कि मैं ठीक रही हूँ इस सारे अरसे में, और उसके अलावा अब जाहिर है वो कंटिन्यूअसली लेती रही है, तो कुछ उसका हेडेक और थोड़ा सा वेट गेन, ये सब चीजें जो नॉर्मली हार्मोनल पिल्स के साथ एसोसिएटेड हैं वो हैं। तो नाउ शी इंक्वायर्स दैट फॉर हाउ लॉन्ग आई हैव टू गो ऑन विद दिस ट्रीटमेंट, एंड periods are stopped, she is not having any more periods। तो अब उसको क्या करेंगे आप? उसकी जो मॉनिटरिंग है उसमें क्या करेंगे आप? मॉनिटरिंग तो आपने ठीक है, बेसिकली इसमें अल्ट्रासाउंड के साथ असेसमेंट उसकी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि व्हेन द ब्लड फ्लो टू द फीडिंग वेसल, जो उसका एवी मेलफॉर्मेशन की जो वेसल है, वो अगर उसको ब्लड फ्लो कम जा रहा है तो वो थोड़ा सा उसका साइज कम होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अब नाउ शी वांट्स टू हैव सम इंटरवल इन दिस, बिकॉज शी फील्स द सिम्टम्स ऑफ इट, ऑफ कंटिन्यूअस हार्मोनल थेरेपी। Madam, अब क्या करेंगे? I will repeat the Doppler studies, ultrasound and the Doppler studies of the patient. To see the status of the AV malformation. If it is reduced and there is enough endometrium generate, then I will give the patient trial of the pill-free period. And if the patient remains okay with this pill-free period, and she had the regular menstruation, although she had continuous pills for 3 months, so there could be the heavy episode of the bleeding after that. So I will counsel her regarding it, and will ask her to immediately report to the hospital, provided she had an heavy episode. I will also tell her that she can take the NSAIDs and the Transamine meanwhile in this period to reduce the bleeding, to reduce the blood loss. She come to you after 2 months, ठीक है, 2 महीने के बाद आती है और वो कहती है मुझे ऑफ एंड ऑन बीच में ब्लीडिंग होती रही है, नाउ अगेन शी इज हैविंग हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग। अब वो फिर एक नए एपिसोड के साथ आ गई है, और इन बिटवीन शी वाज नॉट ब्लीडिंग फ्री, rather she had some episodes of vaginal bleeding, though mild in quantity, लेकिन अब उसको heavy vaginal bleeding है for few days। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? Madam, as the patient came after the 2 months, so I will again review the patient, take the brief history, will also confirm that she is not pregnant, and will go for the examination of the patient and the investigations, including the ultrasound and the Doppler studies from the consultant radiologist, to see the ठीक है, status of एंड इट शोज अगेन विद द हाई डॉपलर फ्लो स्टडीज, वही लीजन जो हाइपोएकोइक लीजन पहले थी उतनी ही तकरीबन दोबारा से ही है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे? बिकॉज डायग्नोसिस ऑफ एवीएम इज कंफर्म्ड एंड नाउ उसकी रिकरेंस है, तो अब नाउ what option you will give to that patient so as to relieve this symptom permanently? She wants a permanent relief of that, because now she is fed up of using these medical management, because it has resulted in nothing better. Madam, as we have gone through the medical management, so I will discuss with her that she will need the definitive management, as this is affecting her quality of life. So I will discuss with her regarding the uterine artery embolization versus although there is the surgical definitive option, that is the hysterectomy, but my patient is having she is para 2, so she need the further she has the further fertility desire. So I will outweigh the benefit and the risk of the uterine artery embolization versus hysterectomy with my patient. I should discuss with her, involve the multidisciplinary team for this, involving interventional radiologists and the consultant obstetricians and my team. I will discuss with her, and if the patient will be willing, I will proceed towards the uterine artery embolization. Okay. Uterine artery embolization definitely is one of the solution जो कि हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इसके अपने कुछ pros and cons हैं in view of her fertility potential. So what other things which you can consider is not hysterectomy at this age, but
the use of hysteroscopic resection of that mass, definitely it carries its own risk of bleeding heavily. क्योंकि ये वाला पेशेंट जो कि लेकिन इसमें जो ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोप है जिसमें आपके पास कोएगुलेशन की फैसिलिटी भी है, तो वो आप उसमें कर सकते हैं रिसेक्शन के साथ, रिसेक्शन ऑफ द मैस और उसके कॉटराइजेशन. लेटर ऑन यू कैन पुट अ बैलून इनसाइड, जो हम हीमोस्टेटिक मेजर के तौर पे करते हैं, और उसको 24 घंटे बाद निकाल दें. दिस इज वन थिंग. इफ द ब्लीडिंग कंटिन्यूज तो फिर आप उसमें यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन पे जा सकते हैं, जो यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन वगैरह ये सब चीजें. तो इसमें जो इनिशियल आपका जो चॉइस होगी दैट विल लाई बिटवीन हिस्टेरोस्कोपिक मैनेजमेंट एंड द यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन. जो हिस्टेक्टमी है इस यंग एज पे व्हेन शी वांट्स मोर चिल्ड्रन, तो वो मैडम बहुत इसे माइरीना ऑफर नहीं किया जा सकता? के तौर पे आ जाएगा. जी मैडम माइरीना ऑफर नहीं हो सकता इसको? बेटा, माइरीना जो है ना उसका एक इश्यू है. बाल दफा आप जब आईयूसीडी इंसर्ट करते हैं दैट इटसेल्फ कैन बी अ ट्रिगर फॉर एवी मैलफॉर्मेशन, क्योंकि वो एंडोमेट्रियल ट्रॉमा कर रहा होता है. और इसमें जब एवी मैलफॉर्मेशन का एक मैस एंडोमेट्रियम के अंदर बना हुआ है तो उसमें माइरीना इटसेल्फ कैन कॉज डैमेज टू दैट. अब एवी मैलफॉर्मेशन का थोड़ा सा मैं बाद में जरा पिक्चर के साथ आपको समझाती हूँ कि इसमें थोड़ा सा वेसल्स की ज़ाहिर डिसरेगुलेशन हुई होती है कि नॉर्मली जो उसमें वेन्स हैं वो जरा उसकी थिन वॉल होती है विच कैन इजीली बी डैमेज्ड. तो अगर आप एक फॉरेन बॉडी इंसर्ट करोगे इनसाइड द यूट्रस, तो वो फॉरेन बॉडी इटसेल्फ जो है, अगर जो उसमें प्रोजेस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रोजन भी उसका एक कंट्रोल करने का तरीका है, बट लेकिन ऐसे पेशेंट में हम ओरल थेरेपी के साथ ट्रीट कर सकते हैं, नॉट विद द माइरीना. माइरीना जो है वो उसके लिए ट्रॉमेटिक समझो के होगा. ठीक है, तो ये वाली चीज हम उसमें फिर माइरीना वाली ऑप्शन इसमें हम नहीं करेंगे. लेकिन इसमें जो दूसरी एक चीज जो हम ट्राई कर सकते हैं वो इवन मेथोट्रेक्सेट भी है. सम टाइम जो हमने इनिशियली जो हमने इसको बाकी सारी हार्मोनल थेरेपीज दी इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जीएनआरएच एनालॉग्स भी है उसमें, ये भी है. पेशेंट अभी फर्ज किया एक ऐसा पेशेंट है, अब जाहिर है जब आपका वाइवा चलता है तो वो किसी भी साइड पे जा सकता है, जिस हिसाब से की बनी हुई होती है उस तरफ एग्जामिनर ने आपको लेके जाना होता है. और हो सकता है एग्जामिनर आपको लेके जाना हो मेथोट्रेक्सेट की तरफ, तो उससे जो है वो आप उसको पेशेंट को, जैसे आपने अभी ओसीपीजी सिर्फ ट्राई किए फॉर 3 मंथ्स, इसमें जीएनआरएच एनालॉग्स का भी एक बहुत इफेक्टिव रोल है. इसमें जाहिर है उनके अपने कॉन्सिक्वेंसेज है. डेनाजोल है, डेनाजोल के अपने कॉन्सिक्वेंसेज है. मेथोट्रेक्सेट है, मेथोट्रेक्सेट के अपने कॉन्सिक्वेंसेज है. लेकिन अमंग ऑल दीज थिंग्स मेथोट्रेक्सेट विल हैव अ बेटर इफेक्ट, क्योंकि उसमें वो एक्चुअली वो डीजेनरेशन कर रहा होता है उस टिश्यू की, और इसलिए जो है वो उसको भी हम ट्राई कर सकते हैं. लेकिन अगर पेशेंट कहती है कि नहीं, आई डोंट वांट टू ट्राई एनी मोर मेडिसिन्स एंड आई वांट टू हैव अ परमानेंट सॉल्यूशन, देन it will the choice will be between uterine artery embolization and the hysteroscopic ligation of that AV malformation. ठीक है. अब ये जो हमने डिसाइड किया था कि हम इसको मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, सपोज द पेशेंट होती वाइटली अनस्टेबल और इसमें पेशेंट ने इतना ज्यादा ब्लीड किया कि दैट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इनिशियल जो ऑक्सीटोसिक एजेंट्स हमने दिए, जो हमने उसको ट्रांसैमिक एसिड दिया, किसी चीज को कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो वो एक इंडिकेशन बन जाती है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की देयर एंड देन. लेकिन अगर पेशेंट आती है हमारे पास नॉट विद द हेवी ब्लीडिंग एपिसोड बट विद ऑफ एंड ऑन इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर दिस डीएनसी 20 days बैक, और जब आपने अल्ट्रासाउंड किया तो यही लीजन आ गई, जब आपने सीटी एमआरआई किया तो उसमें एवी मैलफॉर्मेशन हो गया, देन हाउ यू डिसाइड अपार्ट फ्रॉम द काउंसलिंग और उसके साथ जो डिस्कस करते हैं हम, तो हाउ यू विल डिसाइड कि अब हमने इसको मेडिकल मैनेजमेंट देनी है. क्या हमारे पास कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि जिससे हम ये डिसाइड करें कि ये मरीज है जो कैंडिडेट है फॉर दिस थिंग, ये मेडिकल मैनेजमेंट, या ये पेशेंट है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का कैंडिडेट है. इज देयर एनी पैरामीटर? डॉक्टर सना. Madam, as you tell me that if there will be the bleeding, जी
as you tell me that if there is the bleeding, नहीं, वो मैंने बता दिया ना कि बहुत हैवी ब्लीडिंग का एपिसोड नहीं है, लेकिन वो कहती है कि मुझे थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग रोज ही हो रही है। And it's now 3 weeks past this evacuation and curettage के वो अभी तक उसको ये चल रहा है। तो ज़ाहिर है हमारे ज़हन में डायग्नोसिस फौरन आता है कि आरपीओ, जो जनरली हम देखते हैं कि आरपीओसीज है, बाद दफा डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग वाली भी चीज आ जाती है, और ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेस तो नहीं है, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। एवी मेलफॉर्मेशन तो जरा थोड़ा सा एक रेयर डायग्नोसिस आ जाता। तो ऐसे पेशेंट में हम फिर कैसे ये डिटरमिन करेंगे कि out of these options, what option is most suitable for her at this stage when we have confirmed the diagnosis of AV malformation on imaging study? Then I will outweigh the benefit and the risks of the medical management वो सारे आपने versus बता दिए। uterine artery embolization. पेशेंट आपके ऊपर छोड़ देती है। पेशेंट कहती है कि यू डिसाइडेड बेटर कि किस चीज से मुझे ज्यादा बेहतर Madam, as the patient is vitally stable and hemodynamically she is stable, मतलब and हेमोडायनामिकली स्टेबल है, कोई ऐसा उसको वो नहीं so है, I कोई will मसला give her नहीं। the option I will check that whether patient can reach to the hospital immediately in case of the emergency, and will give her the trial of the oral contraceptive medical therapy. ओके, ये भी खैर एक चीज है, ये भी जाहिर है पेशेंट की विशेस भी काउंट करती हैं, उसकी एज भी काउंट करती है, उसकी फर्टिलिटी भी काउंट करती है, ये सब चीजें, और डेफिनेटली उसका साइज भी काउंट करता है। लेकिन एक और चीज जो बिल्कुल प्रिसाइजली आपको ये डिटरमिन करने में हेल्प करती है, वो ये होती है कि आप उसका डॉपलर फ्लो कराएं। डॉपलर फ्लो पे उस एवी मेलफॉर्मेशन की पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी को देखें। ये एक वो मेजरमेंट है जो यूट्राइन आर्टरी में जाहिर आर्टरीज की वेलोसिटी ज्यादा होती है। अब आर्टरी से जब ब्लड डायरेक्ट वेन में एंटर होगा तो वो उसी जो है वो वेलोसिटी के साथ एंटर होगा, एंड दैट इज द कॉज फॉर बेसिकली डिस्ट्रप्शन ऑफ द वीनस चैनल्स के वो फिर रप्चर होने के बाद हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो जितनी ज्यादा एवी मेलफॉर्मेशन की फीडिंग आर्टरी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, और इवन वीनस वेलोसिटी भी चेक की जाती है कि उसमें उतना ही उसके रिस्क ऑफ रप्चर और रिस्क ऑफ हैवी हेमरेज का चांस ज्यादा होते हैं। ऑन एवरेज जो इसका कट ऑफ होता है वो तकरीबन 40 है। 40 से नीचे हो तो हम मेडिकल मैनेजमेंट के साथ करते हैं। 40 to 60 you can choose any option, उसमें इवन मेडिकल मैनेजमेंट भी चल सकती है, वो दूसरी भी चल सकती है। बट इफ अबव 60 you definitely have to go for फाइनल सोल्यूशन। उसमें फिर मेडिकल मैनेजमेंट के साथ इतना बात बनती नहीं है, क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो दायरा आप लाइफ लॉन्ग तो दे नहीं सकते, तो कि उसमें सिर्फ थोड़ा सा ही रिड्यूस करेगी उसकी सिस्टोलिक, क्योंकि रेजिस्टेंस इंडेक्स कम होता है इन वेसल्स में और पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो इसलिए जो है वो इसमें जो एक पैरामीटर होता है वो ये कि अगर 60 से ऊपर है तो फिर आप इसमें डायरेक्ट यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर दें, या जो आपने हिस्टेरोस्कोपी करनी है वो कर दें, सारा कुछ कर दें। मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट इसमें करनी ज्यादा फीजिबल होगी। तो इसमें लेस देन 60 यू कैन गो फॉर मेडिकल मैनेजमेंट, मोर देन 60 गो फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट, as well as considering the other factors which are deciding factors के पेशेंट की एज है, फर्टिलिटी है, उसकी क्या उसकी एक्चुअल स्टेटस क्या है एवी मेलफॉर्मेशन का, उसका साइज, उसका सारा कुछ, ये सारा कुछ उसके साथ साथ एक ये भी फैक्टर होता है जिसको आप यू टेक इनटू अकाउंट व्हाइल डिसाइडिंग द मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये तो है। अब इसमें दूसरी चीज ये है कि अब बेसिकली जो एवी मेलफॉर्मेशन बन जाती हैं बाज दफा, ये जो अभी मायरीना की जो बात कर रही थी कि अगर बाज दफा आप खाली आईयूसीडी भी रखोगे तो उसके नतीजे में भी ये बन सकती है, क्योंकि ये इसके जो ट्रिगर इवेंट्स होते हैं वो होते हैं या तो कोई टिश्यू हाइपोक्सिया किसी वजह से हुआ हो, या कोई इन्फ्लेमेशन हुई हो, या कोई टिश्यू डैमेज हुआ हो उस एरिया का। तो जब एक नया टिश्यू रीजेनरेट हो रहा होता है तो एंजियोजेनेसिस फैक्टर भी रिलीज होते हैं, यानी इससे नई ब्लड, ये एक समझें कि एक नेचुरल रिपेयर प्रोसेस होता है। तो नेचुरल जो है वो रिपेयर प्रोसेस जो होता है उसमें इस तरह की जो वेसल्स की डिसरेगुलेशन है
दैट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसमें एक नॉर्मल, अब नॉर्मली जो, इसको मैं थोड़ा सा तस्वीरों के साथ आपको बता देती हूँ कि इसमें जो एवी मेलफॉर्मेशन में होता यही है कि आर्टरी जो है वो डायरेक्ट वेन्स के साथ कनेक्ट हो जाती है। और आर्टरी और वेन के दरमियान में वैसे होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है? कैपिलरी। आर्टरी और वेन के दरमियान में और होता है मैडम कैपिलरीज। कैपिलरीज। कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज का क्या फंक्शन होता है? मैडम परमिबिलिटी इनकी होती है, दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। परमिएबिलिटी होती है जिस Basically, they decrease the pressure. ब्लड एक्सचेंज हो जाती है। मैडम ये थोड़ा सा डेफिनेटली वो कम इसके होता है। इसके जो दो मेजर रोल्स हैं वो ये होते हैं कि अब एक तरफ से आर्टरी आ रही है जिसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है, दूसरी तरफ से वेन शुरू हो रही है जिसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है, दरमियान में वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है उसके उसमें एक तो आर्टरी से आने वाला जो, उसको बुलाएं जरा आईटी वाले को, लड़के, हाँ आईटी में, तो जो उसका प्रेशर है, जो आर्टरी से आने वाला प्रेशर है, वो एक तो स्लो डाउन हो जाएगा। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि उसमें न्यूट्रिएंट और गैसेस का एक्सचेंज है। यानी जिस टिश्यू को वो आर्टरी सप्लाई कर रही है वो डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर रही, उसमें उस तरह से परमिएबिलिटी नहीं होती, वरना तो वेसल्स की इंटेग्रिटी खत्म हो जाए। तो ये थ्रू कैपिलरीज हैं जो कि उसमें परमिएबिलिटी होती है और ये उस टिश्यू को पूरे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है जिसकी वजह से वो टिश्यू अलाइव रहता है। ये किसी भी जगह में ऐसे हो सकता है, भी मेलफॉर्मेशन तो बॉडी में हर जगह ही होती है। तो ये दो उसके मेन फंक्शंस होते हैं। अगर उसमें से आर्टरीज कैपिलरीज गायब हो जाए जो, तो आर्टरी का डायरेक्ट फ्लो हो जाएगा वेन के अंदर, और उसके दो नुकसान होंगे। यही जो दो नुकसान जो कैपिलरी के होने से हमें फायदे होते हैं, वो अगर नहीं होंगी कैपिलरी, तो एक तो ब्लड जो है वो उस हाई स्पीड के साथ वेन में एंटर होगा। अब जो आर्टरीज के अंदर जो उसका मस्कुलरिस वो है, उसके जो मसल लेयर है वो काफी स्ट्रांग होती है क्योंकि उसमें बहुत हाई प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा होता है। लेकिन जो वेन्स के अंदर उसकी मसल लेयर है वो वीक होती है, तो वहां पे उसकी थिन वॉल्स होती हैं, वेन्स आर ऑलवेज थिन वॉल्स, तो उसके फिर रप्चर के चांसेस होते हैं, या बाद दफा इवन एन्यूरिज्म भी बन जाते हैं जो कि रप्चर हो सकता है। और उसमें जब आर्टरी के, और दूसरी चीज ये कि जब कैपिलरीज बाईपास हो रही होंगी तो उसमें उस जगह की ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट जो सप्लाई है वो खत्म हो जाएगी, तो ग्रेजुअली दैट टिश्यू विल डाई, उस टिश्यू का डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये दो नुकसान होते हैं जो एवी मेलफॉर्मेशन की वजह से होते हैं। लेकिन जो इसमें सबसे ज्यादा जो पर्टिनेंट फीचर होती है, जो थ्रेटनिंग फीचर होती है, वो ये कि वेन के रप्चर होने से वहां पे ब्रिस्क हैमरेज हो जाए जिस भी जगह में वो है। तो ये एवी मेलफॉर्मेशन किसी भी चीज के नतीजे में बन सकती है, इवन सिजेरियन सेक्शन के नतीजे में। हम जब इसको स्टिच कर रहे होते हैं, अगर हम उसको गलत टेक्निक के साथ स्टिच करें तो टिश्यू इस्कीमिया हो सकता है। एंड मोर ओवर एक सर्जरी हुई है, वहां पे एक रिपेयर होना है, फाइब्रोसिस, फाइब्रस टिश्यू ने डेवलप होना है, तो वो ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज है जो कि उसमें, और इवन थोड़े सा मिनिमल सा ट्रॉमा भी बाद दफा इसको इनिशिएट कर सकता है, और वो इनिशिएशन होगी थ्रू वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के थ्रू, जिसका काम ही होता है एंजियोजेनेसिस या नई ब्लड वेसल बनाना, जो कि रिलीज होता है एज अ रिजल्ट ऑफ इस्कीमिया ऑफ द टिश्यू, डैमेज टू द टिश्यू, या इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यू। तो ये किसी में भी, यानी एंडोमेट्राइसिस होगा, कोई भी इंफेक्शन भी हो जाए तो भी उसमें होता है। लेकिन हम अमूमन इस हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग या मेट्रोडेज या इन सब के चीजों के पीछे हम यूजुअल जो है वो चीजें तलाश कर रहे होते हैं, बट सम टाइम ऑलवेज कीप दिस पॉसिबिलिटी इन माइंड। ठीक है, तो ये हैं जो कि उसमें जो है वो हम मतलब उसको, उसका हमेशा हमें उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें डीएनसी करें और वो ये हो, अगर फर्ज किया इसको हम आरपीओसी समझ के इसकी इवैक्यूएशन कर दें और वो हो एवी मेलफॉर्मेशन, इट कैन रिजल्ट इन लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज।
क्योंकि तब उसको तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपने तो पूरा वेस्कुलर चैनल ही डिस्टर्ब कर दिया। तो वो चीज है जो कि इसमें मसला कर सकते। तो थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं जब तक ये तस्वीरें मैं आपको दिखाती नहीं हूँ। आई एम वेटिंग फॉर द मैन टू कम, IT पर्सन। मैडम तो मैडम पूछना था कि हिस्टेरोस्कोपिकली आप कह रही थी कि इसको रिजेक्ट। हाँ जी, हिस्टेरोस्कोपी के लिए देखो, जैसे हम बहुत सारी बाकी चीजों की भी जो ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी हम करते हैं, दैट इज वन ऑफ द मैनेजमेंट ऑप्शन, स्पेशली इन द पेशेंट जिनमें यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में रिस्क है कि कहीं ओवेरियन उसमें फेलियर ना हो जाए, ज्यादातर तो ये इशू होता है। अब क्योंकि देखो जो राइट और लेफ्ट यूट्राइन आर्टरीज हैं, उन दोनों के कनेक्टिंग वेसल्स भी होते हैं। तो जब भी हम लाइगेशन करते हैं, फिर अगर हम एग्जैक्टली उस फीडिंग वेसल तक पहुंच जाए तो दैट इज द बेस्ट। जैसे फाइब्रोइड में भी होता है कि सिर्फ उस लिगेंड को प्रोवाइड करने वाली वेसल को हम करें, अदरवाइज यूट्राइन आर्टरी को करेंगे तो यूट्राइन आर्टरी के कुछ वेसल ओवरी को भी सप्लाई कर रही होती है। सो द रिस्क इज ऑलवेज देयर, नॉट 100%, लेकिन हमेशा होता है। तो उससे लेस देन दैट वी कैन ट्राई फॉर हिस्टेरोस्कोपिक लाइगेशन ऑफ दिस वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन। तो ठीक है, तो मैडम वो कर उसमें सकते हैं, कॉटरी कर सकते हैं, कोएगुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद उसको फिर हमने यूट्राइन कैविटी को पैक करना होता है अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो, वरना जरूरत नहीं होती। तो मैडम उसमें तो ये है ना कि फीडिंग वेसल्स तक तो नहीं पहुंचेंगे ना हम हिस्टेरोस्कोप में, तो फिर वो नहीं, कैसे फिर हम तो रिकरेंस फीडिंग हो वेसल जाएगी। तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। ये है जो एंडोमेट्रियल लीगन है, एंडोमेट्रियम के अंदर वो लीगन आपको आपको हिस्टेरोस्कोपी में किसी वेसल के अंदर तो जा भी नहीं रहे होते, आप उसको फीडिंग आपने तो उस लीगन को कोएगुलेट करना है, फलग्रेट करना है, उसको आपने लाइगेट करना है, मतलब उसमें उसकी कोएगुलेशन ही आप सारी कर रहे होते हो। एंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन इवन थ्रू हिस्टेरोस्कोप। तो इसलिए जो है वो उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसको कर सकें, कोएगुलेट कर सकें। तो मैडम उसमें फिर रिकरेंस नहीं होगी। नहीं, रिकरेंस के चांसेस तो होते हैं, लेकिन देखो जो एक्वायर्ड होते हैं वो अमूमन सिंगल होते हैं। जो अगर जैसे इस पेशेंट में एक्वायर्ड ही है, क्योंकि इसमें DNC के बाद हुआ, तो एक्वायर्ड जो है वो अमूमन सिंगल होता है, ज्यादातर मोस्ट कॉमनली इट इज सिंगल। तो उस सिंगल को अगर हम कोएगुलेट कर देंगे तो वो यानी वो उसका वेस्कुलर कनेक्शन, आर्टरी का कनेक्शन वेन के साथ आपने खत्म कर दिया, उससे जगह का नई वेसल ग्रो कर जाएंगी अपने उस पैटर्न के साथ। लेकिन रिकरेंस तो फिर कंजेनिटल और एक्वायर्ड दोनों में हो सकती है, अगर बेसिक ट्रिगर वहां पे परसिस्ट करता है तो वो तो हो सकती है, रिकरेंट तो हो सकती है, ये तो कोई गारंटी नहीं होती कभी भी। लेकिन इसमें इवन अगर आप यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन भी करते हो तो उसमें तो बायलैटरल करोगे तो बात बनेगी, और बायलैटरल जब करोगे तो जाहिर है उसके फिर अपने कॉन्सिक्वेंसेज है। ठीक है, तो उसमें रिकरेंस तो उसमें भी हो सकती है, स्टिल पॉसिबल। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अच्छा मैडम एग्जाम में ना उन्होंने स्कैन मांगा ना, तो उन्होंने स्कैन की पिक्चर दी सामने, ठीक है, फिर ठीक उनसे है, डॉपलर कहा तो डॉपलर स्टडीज की पिक्चर रखी सामने। ठीक तो है। अब एट दैट पिक्चर में आपको नजर कैसे आएगा? अब वो पिक्चर में मैडम कैसे नजर आएगा? या तो ये मायोमीट्रियल होगा या फिर एंडोमेट्रियल होगा। ठीक है, मायोमीट्रियल में डायलेटेड टॉर्चोस वेसल, अब आरपीओसीज मायोमीट्रियम के अंदर तो नहीं हो सकते ना, आरपीओसीज तो होंगे एंडोमेट्रियल केनाल में। तो जो टॉर्चोस डायलेटेड वेसल्स हैं वो उसके अंदर होंगी, और जो डॉपलर फ्लो होता है उसमें बड़ा एक मोजेक पैटर्न होता है ब्लड फ्लो का, यानी उसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती है, सही उसमें टर्बुलेंट फ्लो होता है। यानी कोई ठीक उसमें एक तो हमें पता चलता है ना, एक आर्टरी का फ्लो है एक डायरेक्शन में जा रहा है, वेन का फ्लो एक डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें एक टर्बुलेंस होती है जिसमें कोई पैटर्न नहीं होता। तो ये जो मायोमीट्रियम के अंदर वाली डायलेटेड टॉर्चुअस वेसल्स हैं और उनके साथ टर्बुलेंट फ्लो हो डॉपलर फ्लो पे, तो दिस इज इंडिकेटिव ऑफ एवी मेलफॉर्मेशंस। ठीक है मैडम, फिर उसके बाद हम प्रोविजनल उनको बताएंगे कि ये भी मेलफॉर्मेशन ही है ना, फिर हाँ, तो हम उसमें आप बता सकते हो, जाहिर है डॉपलर फ्लो पे हमें ये पता चलेगा, और या उसकी हो सकता है फाइंडिंग दी हुई हो। तो बाकी जो अल्ट्रासाउंड पे ज्यादा मसला होता है जब ये एंडोमेट्रियल केनाल के अंदर ये लीजन हो तो, और एंडोमेट्रियल केनाल के अंदर लीजन होगी तो उसमें अमूमन आरपीओसीज के साथ बीटा एसीजी, अगर वो आरपीओसीज के अंदर डॉपलर फ्लो है तो बीटा एसीजी कैन बी मच हायर, क्योंकि अगर डॉपलर फ्लो वहां पे एग्जिस्ट करता है, ब्लड फ्लो है, तो इसका मतलब है कि वहां पे अलाइव ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है, यानी ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है तो ब्लड वेसल्स उसमें हैं।
तो उस सूरत में बीटा ईसीजी लेवल आपको थोड़ा सा उसमें सॉर्ट आउट करने में हेल्प करें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना अब पिक्चर का हम देख लेते हैं, इसको खत्म करते हैं। पिक्चर 8 शेयर कर। इसमें ये कैसे हो सकता है? मैं देखती हूँ। नहीं, ठीक है वो अच्छा, चलें जी। पिक्चर जो थोड़ा सा पेन ड्राइव का कुछ इशू हो गया वो उसमें नहीं है। तो बहरहाल वो चीज वही है जो मैंने पिक्चर फॉर्म में जो दिखाना चाह रही थी कि कैसा असल में ये इनकी क्या होता है, इनका जो एक्चुअली जो इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, जो हमने ऑलरेडी उस तरह से डिस्कस कर भी ली है। तो वही था कि इसमें इसका ट्रिगर क्या होता है और इसको हमने कौन से इवेंट हैं जिसके बाद इसको हमें सस्पिशन में रखना चाहिए, और क्या इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, क्या इसकी पैथोजेनेसिस एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन, यही है जो कि हमने इसमें डिस्कस करना होता है। तो कोई एक और जो एक आध क्वेश्चन है उसके बाद फिर हम इसको खत्म करते हैं। और कोई जो क्वेरी हो आपको इस बारे में वो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं जी। ओके, इफ देर इज नो मोर क्वेश्चन फिर हम इसको एंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या डिस्कस करना चाहते हैं? एनी सजेशन फॉर द नेक्स्ट? मैडम वल्वल टीबी हो गया मैडम? क्या? वल्वल टीबी, वल्वल ट्यूबरक्लोसिस मैडम लास्ट टाइम आया था। ट्यूबरक्लोसिस? अच्छा, वल्वल ट्यूबरक्लोसिस। ओके, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।